students. Good afternoon. Hello. Hello, students. Ma'am, your mic is muted. Just let me verify. Okay. Now it's clear. Am I Yes, ma'am. audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, yesterday we were continuing heredity. Is that clear? So, I taught yesterday Mendel's law of inheritance. ठीक है? So again, I will give the brief regarding that the previous topic taught yesterday. ठीक है? First of all, who was Mendel? Answer me. Who was Mendel? Tell me. Who was Mendel? He is called father of genetics. याद आया? Is it all clear? Yes. Okay. So, first of all, I will tell that in 1900 to 1, this law of inheritance came into existence. ठीक है? And what Mendel did, he picked up the pea plant. Do you know its botanical name? 1 mark question is asked. Physarum sativum. It's a botanical name. So pea plant he picked up for his experiment. And what he collected, why he picked up. First of all, this question arise in your mind that why he picked up only this pea plant, why not others. So इसके कुछ क्वालिटीज उन्होंने पिक किए. फर्स्ट, it was bisexual. Second, the rate of multiplication was very high. And third, number of progenies were much more in numbers. ठीक है? So, after selecting, first of all, he collected 7 colors, 7 character from that plant for his experimentation. And out of that, he picked up and took 3 characters. Maybe a question for MCQ. If 3 option will not be there in the options, in the choices, if 7 is given, you will give tick mark to 7. Am I clear? Now, 3 characters he picked up for his experiment. First, what was that? Length of the stem. Length of the stem. Note it down if not noted or if not present in yesterday class. Second, seed color. ठीक है? And then seed shape. 3 characters he picked up for his experimentation. Is that clear? And now we come to the types of cross. उन्होंने कितने टाइप के क्रॉस को इन्वेंट किए? 2 types. Are you recalling? First was monohybrid. First, monohybrid cross. लिख लो. What is monohybrid?
cross between single pair of contrasting character. Am I clear? And for this monohybrid cross, he took length of the stem. This character he picked up for monohybrid cross. ठीक है? Then 3 laws already we have discussed yesterday, that 3 laws were there. First law, I'm not writing it again. You might have learned 3 laws. First, law of dominance and recessiveness. Second was law of segregation. And third was law of independent assortment. Is that clear? Now, just see the first law. Again, it's very important, mind it. At P level is parental level. At parental level, हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेरिएशन, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक. तो फिनोटिपिक यहाँ लिख लोगे ऐसे. फिनोटिपिक क्रॉस में मीन्स व्हाट वाज द फिजिकल अपीयरेंस. तो हमने कहा ना कि लेंथ ऑफ द स्टेम को उन्होंने पिक्ड अप किया और दैट वाज टॉल एंड ड्वार्फ. 2 फिजिकल कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कितने थे? 2. और ये कैसा क्रॉस है? मोनोहैब्रिड क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर, 1 पेयर है, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. एक टॉल था और दूसरा ड्वार्फ था. इज दैट क्लियर? सो दिस 2 कैरेक्टर were taken for his experimentation to prove first law. ठीक है? ये फिनोटिपिक अपीयरेंस क्या था? टॉल था और कॉन्ट्रास्टिंग क्या था? ड्वार्फ. अब देखो जीनोटिपिक, उन्होंने जीन टर्म यूज नहीं किया था. व्हाट ही यूज्ड? फैक्टर. तो फैक्टर यहाँ क्या होगा? 2t और ये 2 स्मॉल t. ठीक है? So why I have, if anyone questions, why you have written double T? Why not single? तो आंसर क्या होगा? Because to express any character, whatever the character may be, to express any character, there should be the presence of gene in pairs. एक T होगा तो it is not going to express tallness. So it is required to present gene in pairs at one loci. Loci is the place of gene over chromosome. ठीक है? तो ये कितना T है? 2. 2 capital for tall, 2 small for dwarf. Is that clear? Now अब ये पेरेंटल लेवल पे क्रॉस था तो पहले गैमेट्स होगा. गैमेट्स में meiosis 1 we all have discussed earlier that reductional division means chromosome number reduced to half. तो ये 2 है तो कितना होगा? 1t. ये 2t है, what will that is 1t. When gametes has been formed, then what is to left? Fertilization, fusion. So in F1 generation में after cross क्या बनेगा? T and T. Is it visible? Yes. Yes, ma'am. क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम यू हैव? Am I audible? No, ma'am. Okay. So what it will be? T and T. यहाँ तक समझ में आया स्टेप्स? ठीक से समझो और कोई कंफ्यूजन है तो फिर से पूछो. ठीक है?
तो ये टी और टी क्या हुआ, F1 जनरेशन। तो आफ्टर क्रॉस F1 जनरेशन क्या हुआ, 2T। इसमें क्या देखा गया कि ऑल टॉल जितने भी प्लांट थे F1 जनरेशन में क्या हुए, टॉल। पूछ सकते हो व्हाई नॉट दिस, ये F1 जनरेशन, नॉट इन रेस्ट जनरेशन एंड अदर जनरेशन। In F1 generation, this dwarfness was recessive, it was not dominant। और जो डोमिनेंट नहीं होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा, इसलिए नोट डाउन कर लो, always dominant gene is expressive, or if the dominant gene is not present, then recessive will be expressive। लिख लो इसको, note it down, always dominant gene will be expressive if no presence of dominant gene, then the recessive gene will be expressive। Is it all clear? लेकिन अब ये देखा गया कि F1 जनरेशन में तो टॉलनेस डोमिनेंट था, टॉल कैरेक्टर वाज डोमिनेंट। तो क्या किसी और जनरेशन में टॉलनेस एक्सप्रेस नहीं हुआ या नहीं होगा, या ये रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, इट विल बी। लेकिन 1/4 किस रेशियो में, मे बी ए क्वेश्चन फॉर MCQ, 1/4 of the total number of plant taken। Your answer will be what? It will be expressive in forthcoming generation, but in 1/4 of the total number of plant taken। Am I clear? Is it all clear to you? Tell me. Unmute Yes, ma'am. yourself. Okay. तो ये क्या हो गया, tall। तो what he derived his law on this basis, और उन्होंने पूरे 7 कैरेक्टर्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया, और लास्टली he came on this conclusion that in F1 generation whatever character appears it will be always dominant, others, देखो ये T, other which not appear in F1 generation only will be recessive। This was law of dominance and recessiveness। Is that clear? 100%? Now Yes, ma'am. okay। तो इन्होंने ये हमेशा ध्यान रखोगे, 3 कैरेक्टर, लेंथ ऑफ द स्टेम, सीड कलर एंड सीड से। तो अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही क्रॉस है, तो ये क्या उन्होंने पिक किया, लेंथ ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन मेरा डिराइव आउट हो गया, ऑल टॉल। नाउ कम टू द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट्स मीन्स टू सेपरेट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या किया, अब ये जो F1 जनरेशन है इट वाज सेल्फ क्रॉस्ड, यहाँ लिख लोगे, इट इज सेल्फ क्रॉस्ड। क्यों हुआ, why I have written self crossed, why he did self crossed, because it was bisexual plant, bisexual in which one organism having both type of sexes। अब पूछोगे कि तो both type of sexes है तो इंटरफर्टिलाइजेशन होगा, नो, टाइम ऑफ मैच्योरिटी डिफर्स, इसलिए ये बाइसेक्सुअल प्लांट था, तो इन्होंने सेल्फ क्रॉस्ड कराया टू गेट द सेकेंड लॉ। अब देखो सेकेंड लॉ के लिए इन्होंने ये दो जो एंटिटीज, एंटिटीज मीन्स जीन फैक्टर, ये दोनों को सेपरेट आउट किया।
ठीक है, he separated out these two entities. तो ये self crossed है, means taking as a male, taking as the female. तो इन्होंने क्या किया, यहीं पे कर लो, और ऐसे ये मेल का साइन है minded and this is female. What he did, like T and T. अब now do cross multiplication. यहाँ क्या होगा, T and T. यहाँ क्या होगा, T and T. Here this will be T and T. यहाँ क्या होगा, दो small t. अब कितने गैमेट्स बने, एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n. n is number of gametes, number of heterozygous gamete, not similar, number of heterozygous gamete. तो कितना बना, दो गैमेट्स था, एक और दो, तो 2 to the power 2 कितना हुआ, 4. 4 रिजल्टेंट है. अब देखो इसका रेशियो क्या होगा, दिस विल बी टॉल. समझ में आ रहा है, ये कैसा टॉल है, प्योर, जिसको होमोजाइगस कहते हैं. ठीक है, तो 1 प्योर टॉल, ये भी टॉल है, ये प्रूफ हो चुका है. हाँ, इज दैट क्लियर? दिस इज प्योर टॉल 2 कैपिटल T and this is impure tall. ये प्रूफ हो चुका है F1 जनरेशन में. ये भी टॉल होगा एंड ये भी टॉल होगा, लेकिन ये दोनों कैसा होगा, हेट्रोजाइगस टॉल, इम्प्योर. तो 1:2 और ये क्या होगा, होमोजाइगस डॉल. 1:2:1. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 1:2:1. ये कैसा रेशियो होगा, आंसर मी. 1:2:1. हाँ, कैसा होगा, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, आंसर मी क्विकली. मैम जीनोटिप. वेरी गुड. हाउ, टेल मी, क्यों होगा जीनोटिपिक? यू आर राइट, बट हाउ? मैम 3 करेक्टर इज बड़ा टी एंड टी, जिसमें बड़ा टी डोमिनेंस है और एक में जो डोमिनेंस, दोनों टी, डोमिनेंस नहीं, डोमिनेंस. ठीक है, डोमिनेंस. हाँ, ये दोनों एक तरह का, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये दोनों फैक्टर एक टाइप का है, कैपिटल है. ठीक है, कोई इसमें एडमिक्सचर नहीं है. तो ये कैसा है, प्योर. ठीक है, और प्योर को कहते हैं होमोजेनस. ठीक है, और ये कैसा है, टॉल है बट मिक्सचर है, इम्प्योर है. ये भी टॉल है लेकिन इम्प्योर है, हेट्रोजाइगस टॉल है. और ये क्या है, प्योर है लेकिन हेट्रोजाइगस, सॉरी, होमोजाइगस ड्वार्फ. अभी हमने, अब कहोगे कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ दिस कैपिटल T इज डोमिनेंट. लेकिन अभी हमने क्या बताया कि इफ dominant gene is not present, dominant factor is not present, then recessive will be expressive. ठीक है, तो यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं है डोमिनेंट फैक्टर का, जीन का, तो रिसेसिव ही एक्सप्रेसिव होगा. तो ये 1 हो गया, 1:2:1. ये कैसा हुआ, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक. ठीक है, अब देखो ऑन द होल क्या हुआ, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, 3 टॉल, 3:1. और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, और ये हेट्रोजाइगस टॉल है, एडमिक्सचर है, प्योर नहीं है. ठीक है, तो ये क्या होगा, 3:1. फिजिकल, फिनोटिपिक मीन्स बाय सीइंग
एक्सटर्नली। ये तीनों टॉल, ये तो टॉल है ही, बट ये तीनों टॉल बाय फिजिकल अपीयरेंस। तो ये 3 टॉल हुआ, लेकिन ये कंप्लीट होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये जो रेशियो हुआ, ये क्या हुआ? फिनोटिपिक। ठीक है, लिख लेना, फिनोटिपिक। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया? सेकेंड लॉ। नाउ आस्क एनी क्वेरी, because after then I am going to start the third law, that is very very important. Up to, I am not going to repeat these 2 law again. So if any query, you can ask. Bolo. 1 minute I am giving you time. Any confusion, then ask me. Any question from anyone? Don't be silent. Unmute yourself and answer. Any query? Any question you have to ask? यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया? Should I consider? If not asking any query, then should I consider that all 100% clear up to this section, first and second law? Don't take time. Tell me yes or no. मैम हाँ बोलो. Raise your question. Don't be silent. Ask. What problem you have? Ask me. में आ गया। समझ में आ गया? यस मैम। 100%? यस मैम। That's very good. तो should I rub all these? लिख लिया है तुम लोगों ने? यस नोट डाउन किया है? यस मैम। Okay. Now come to the third law. Just see very clearly and listen very patiently. It's very important. In board, either of 5 marks or 3 marks question has to be asked. Keep in your mind. बहुत important है, इसलिए अच्छे से समझो. कोई भी प्रॉब्लम है, immediately raise your hand and ask. Then third law. Third law क्या था? Law of, इंडिपेंडेंट very good, independent इंडिपेंडेंट assortment. असॉर्टमेंट। Assortment. ठीक, इंडिपेंडेंट असॉर्ट. अब देखो, असॉर्ट कहते हैं सेपरेट, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. क्या उन्होंने किया? अभी तक जो हम लोग 2 लॉ देखे, जो 2 लॉ उन्होंने डिराइव किया था, इट वाज ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉस? टेल मी क्विकली. मोनोहाइब्रिड। Very good. Now the other type, that was dihybrid. Dihybrid cross. अब dihybrid में हमने क्या बताया था? क्रॉस बिटवीन 2 pairs of contrasting character. यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट है. कैरेक्टर क्या था? 3 कैरेक्टर उन्होंने पिक किया था. लेंथ, इट वाज ऑल क्लियर. इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस टू डिराइव आउट 2 लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ. अब उसकी बारी खत्म हो गई. अब किसकी बारी है? सीड कलर एंड सीड शेप. 2 कैरेक्टर हो गया. ठीक है. अब इन 2 कैरेक्टर को उन्होंने अपने थर्ड लॉ में पिक किया. किस टाइप के क्रॉस में? डाइहैब्रिड क्रॉस. ठीक है. तो जस्ट एट द सेम, एट टी लेवल, पेरेंटल लेवल,
क्या था? पहले फिनोटिपिक लिख लो, लाइक प्रीवियस वन. फिनोटिपिक में क्या था? अभी हम लोग लेंथ की बात नहीं करेंगे. इट इज ओनली कंसर्न टू कलर एंड शेप. कलर उन्होंने क्या किया? येलो. येलो के साथ क्या था? शेप क्या था? राउंड. ये फिनोटिपिक है. दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया था? ग्रीन. शेप में क्या था? रिंकल. इट वाज रिंकल. अभी हुआ टू पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग. एक येलो था, राउंड था, दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर था. अब पूछोगे कि हमने खुद ही कैसे कहा कि रिसेसिव है? व्हाई नॉट इट कैन बी डोमिनेंट? तो जस्ट हमने कहा ना कि उन्होंने ऑल कैरेक्टर्स को सीड, शेप, सीड, 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने पिक किया था फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. तभी ये लॉ डिराइव हुआ विथ ऑल कॉन्फिडेंस. तो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में देखा था कि येलो वाज डोमिनेंट. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ कैन यू से इट इज डोमिनेंट एंड इट इज रिसेसिव, व्हाट योर आंसर विल बी? It was already proved by the Mendel. Yellow was dominant, round was dominant over green and wrinkled in his F1 generation. Am I clear? Children, am I audible? Clear? Yes, ma'am. Very good. अब देखो, ये क्या है? हमने लिया पी लेवल पे. ये कैसा था? फिनोटिपिक. अब जीनोटिपिक में आओ. येलो के लिए सिंबल क्या लिया गया था? वाई. ऐसा नहीं है कि तुम वाई ही ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट इट विल बी इजी टू गेट. वाई मीन्स येलो. ठीक है. कैपिटल हमने कहा ना ये डोमिनेंट था. ठीक है. राउंड के लिए दैट वाज कैपिटल आर. फिर ग्रीन के लिए जी भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों? ये इजी होगा टू अंडरस्टैंड. तो इसको चूंकि रिसेसिव कैरेक्टर है तो क्या लिखा गया? स्मॉल वाई. रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर. ये कैसा था? ये देखो, ठीक से देखना, समझ में आया? वाई आई हैव रिटन लाइक दिस. ये बिल्कुल मैथमेटिकल है. जेनेटिक्स इज ऑल दैट. थोड़ा अभी कम लेवल पे है. ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके. सो फिनोटिपिक 2 कैरेक्टर. डाईहैब्रिड है 2 कैरेक्टर्स. 2 ही बचा था, एक यूज हो गया. कलर और शेप. तो येलो और राउंड डोमिनेंट विथ रिसेसिव क्रॉस. ये फिनोटिपिक. जीनोटिपिक दिस वाज. ठीक है. एट पी लेवल. अब इसके बाद का स्टेप क्या लिखेंगे? व्हाट शुड आई राइट? टेल मी, लाइक प्रीवियस वन. टेल मी क्विकली, व्हाट शुड आई राइट हियर? जल्दी बोलो. एनीवन? आंसर मी. टेल मी इफ Ma'am. यू आर. हाँ बोलो. Gamete. Gametes. So why you are taking such time? Immediately tell. ठीक है. यहाँ gametes. अब देखो gametes में क्या होता है? Like meiosis 1, reductional division, chromosome number reduced to half. ये 2 है तो क्या होगा? 1. ये 2 है, क्या होगा? 1 R capital. Likewise here also 1
small y, and this is 1 small r. यहां तक क्लियर है? अब गैमेट्स भी डिराइव आउट हो गया. अब देखो हमने बताया ना 2 to the power n, n is equal to number of heterozygous gamete. कितना है? 4. 2 to the power 4 कितना बनना चाहिए? 16 कॉम्बिनेशंस. ठीक है. अब देखो ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. y y, फिर ये मैथ्स में तुम लोग किए हो r and y, this is r and r. ठीक है. Am I clear? Yes. अब इसको Yes, क्या ma'am. करोगे? वैसे ही डिराइव आउट करोगे. तो इसको एक जैसा लिख लो. ठीक है. अब इसको कहते हैं पनेट स्क्वायर टेस्ट. अब इसको फिर से ऐसे कॉलम बनाओ, रोज बनाओ, टेकिंग एन, ये भी क्या होगा? सेल्फ क्रॉस्ड. taking as male and female. Am I clear? अब यहाँ भी वैसा ही कॉलम बनाओ, वाई आर वाई वाई, आर आर वाई वाई. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे. जस्ट आई एम शोइंग 1 or 2 and you will do yourself in your home. In next class, if confusion will be there, then you will ask me. ठीक है. फिर से हम उसको बना के बताएंगे. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू विल मेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. देखो ये समझ में आया? हाउ आई हैव मेड? Yes, ma'am. मैंने हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. ये इससे इससे, फिर इससे इससे. तो अब देखो ये कैसा कैरेक्टर होगा? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, बिकॉज टाइम इज रनिंग फास्ट, सो जस्ट आई एम शोइंग द एग्जाम्पल and you will make this and do yourself. Don't copy from book. And if any confusion in doing, then ask me in the next class. Again I will make that column and rows and then clear it. ठीक है. ये क्या हुआ? कैसा कैरेक्टर हुआ? Now you tell. Dominance. नहीं, कैसा phenotypic कैरेक्टर क्या आएगा? This will be yellow. We all know yellow is the dominant. ठीक है. और यहाँ सारा कैरेक्टर डोमिनेंट है, ऑल 4 है ना? दिख रहा है? Yes. तो ये कैसा होगा? येलो Round. राउंड. वेरी गुड. ठीक है. ये कैसा होगा बताओ? एनीवन टेल मी. Round. हाँ, राउंड येलो होगा. ठीक है. Yes, ma'am. Yellow. हाँ, और येलो होगा. और देखो यहाँ ग्रीन भी है, रिसेसिव कैरेक्टर, बट येलो इज द डोमिनेंट. तो येलो एंड दिस विल बी द राउंड. ठीक है. ये आ रहा है. ठीक है. तो ये क्या होगा? येलो राउंड. अब देखो लास्ट ऑप्शन देख लो, रेस्ट तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे. ये देखो कंप्लीट रेसेसिव कैरेक्टर है. तो ये कंप्लीट रेसेसिव कैरेक्टर क्या होगा? ग्रीन एंड रिंकल्ड. तो इसका फाइंड आउट करोगे 16 कॉम्बिनेशन. ये रेशियो आएगा 9:3:3:1. ठीक है. व्हाट रेशियो मीन्स? ये 9 कैरेक्टर जो है इट विल बी कमिंग एज डोमिनेंट, येलो एंड राउंड. और एक यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव आएगा. होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? ग्रीन भी रिसेसिव है और शेप में, सीड शेप में
wrinkled भी recessive. तो 9:3:3:1. It may be a question for MCQ as well as for the long answer. 5-mark question. Rarely asked for 3 marks, but it is of 5 marks. Question होगा लिख लो and you will try to write. Define law of independent assortment. Define law of independent assortment. Or what Mendel did to find out his third law. What Mendel did to find out his third law of inheritance. Am I clear? Is it all clear to you? Tell me. Yes, ma'am. Okay. तो I think should I expect ये दोनों एक ही आंसर होगा. तो should I expect that you can write yourself without taking any help of book? Don't copy from book. I never like this thing. लिख लोगे? Yes, ma'am. अब देखो वर्बली हम बता देते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिक्टेट कर देंगे और ये अगर नहीं फाइंड आउट हुआ तो आई विल डिराइव इट अगेन. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एज डेफिनेशन व्हाट यू विल राइट. जैसे 2 लॉ में तुमने लिखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी लिखा, द एंटिटीज विल बी सेपरेटेड एंड इट विल रिजल्टेड इनटू 1:3:1 एंड 1:2:1 रेशियो. ये ठीक है. थर्ड लॉ में क्या लिखोगे? मेंडल इन हिज डाइहाइब्रिड क्रॉस taken 2 characters and that was seed color and seed shape. 16 combinations were observed in 9:3:3:1 ratio that shows and all assorted out independently. That showed seed color is independent of seed shape. Is that all clear? Tell me. Yes, ma'am. Very nice. It is all clear. When you respond. Yes, ma'am. Yeah. When you respond, I take pleasure कि तुम लोग समझ गए हो. ठीक है. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स में. जेनेटिक्स का बहुत सारा चीज़ तो डिलीट ही हो गया, बट दिस मेंडल्स लॉ इट्स बेस इन जेनेटिक्स. इसीलिए मेंडल को कहा भी जाता है, इनका फुल नेम था जॉन ग्रिगोर मेंडल. ही इज टोल्ड स्टिल नाउ एंड विल बी एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है. तो इनका टोटल एक्सपेरिमेंट ही था कि how character is transmitted from parental to the daughter cell. So for that matter he experimented on pea plant and derived out 3 laws that shows how characters transmitted. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Now you tell me, very less time is left. Any query you have? कुछ पूछना है? वेरिएशन समझ में आ गया था. 3 types of variation. Again I am repeating: phenotypic, genotypic and somatic. Somatic. ठीक है. phenotypic में you will write only this thing that ठीक है. phenotypic only you will write that
it's only the physical appearance, nothing else. What we see, what we observe externally, उसको कहते हैं phenotypic variation. ठीक है? Xenotypic, it is all concerned relating to gene. मतलब कि if there is change or there is variation in the structure of chromosome and the gene present over there, its placing, it is genotypic. ठीक है? Somatic, it is all relating to the external factor. This shows that how external factors like variation in the climatic condition, extreme temperature, these are all that things taking place, intelligence, these are all the things, external factors, how it affects the organism. तो इसको कहते हैं somatic. Somatic means it is only these all external factors induce the soma cell. That is somatic variation. Is it all clear, children? Yes, ma'am. Okay, very nice. So we are going to meet in the next class, and with this topic, if any problem, then search it out and jot it down, and in next class you will ask. I think no queries, no problem you have? Yes or no? No, ma'am. Okay, very nice. Then have a good day and read more. Time is very precious, beta. Read more, and we will be meeting in the next class. Okay?